They said this child would never fit in. They never imagined what they could become. Today, millions admire them. लोग कहते हैं, ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ये कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया के कई महान लोगों को भी कभी कमजोर समझा गया था। किसी को ऑटिज्म था, किसी को ADHD, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। आइए मिलते हैं ऐसे ही 7 प्रेरणादायक लोगों से, जिनकी कहानी आपकी सोच बदल देगी। Hikari Oe came into this world developmentally disabled and autistic, with his parents having to fight for his right to live. Even after a life-saving operation, Oe was left with visual impairment, epilepsy, and a limited vocabulary. When Oe responded to a bird singing, his parents were inspired to hire music teachers. जापान में जन्मे हिकारी ओए बचपन से ही ऑटिज्म से प्रभावित थे। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद वे कभी सामान्य तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान ने उन्हें एक अनोखा उपहार दिया था, संगीत। वे सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनकर उन्हें पहचान लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने पियानो बजाना शुरू किया और फिर ऐसी धुनें बनाई जिन्हें पूरी दुनिया ने सराहा। आज हिकारी ओए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार हैं। उनकी रचनाएं दुनिया भर में प्रस्तुत की जाती हैं और लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, हर बच्चे के अंदर एक हुनर छिपा होता है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। Would learn to communicate through music, going on to become a successful composer, with his first CD selling over 1 million copies. His father, Nobel Prize winner Kensaburo Oe, has written extensively about his son's growth and his personal experience coming to terms with Hikari's condition. When I listen to the music of my son, I don't experience any passive deed. I feel I'm doing something positive with my son. Author Lindsley Cameron would also explore Oe's extraordinary journey in the inspirational book, The Music of Light. Did you know that one of Hollywood's most iconic actresses is also a passionate environmental activist, and she's autistic? With a career spanning decades, Daryl has captivated audiences with her versatility, charisma, and memorable performances. हॉलीवुड अभिनेत्री डैरिल हैना बचपन में ऑटिज्म से जूझ रही थीं। लोगों से बात करना, भीड़ में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वे स्प्लैश, किल बिल और ब्लेड रनर जैसी सुपरहिट फिल्मों की स्टार हैं। वे एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करती हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ऑटिज्म सपनों को नहीं रोक सकता। Outside of her acting career, Daryl is passionate about environmental sustainability and conservation. In 2013, Daryl publicly revealed her autism diagnosis, raising awareness and promoting acceptance of neurodiversity. Daryl Hannah's courage in sharing her story has inspired many, demonstrating that autism is not a barrier to success or fulfillment. At age 3, Danny Bowman was diagnosed with autism. She wouldn't speak her first words for another 3 years. But her aptitude for animation and entrepreneurship was apparent from a young age. Upon turning 11, Bowman launched Dannymation Entertainment, and by age 14, she was working professionally in animation. The following year, she headed up summer animation camps, serving as a teacher, mentor, and role model. डैनी बोमन को 11 साल की उम्र में ऑटिज्म का पता चला, लेकिन उन्हें चित्र बनाना और एनिमेशन बनाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी इसी रुचि को अपना करियर बना लिया। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी एनिमेशन कंपनी शुरू कर दी। आज वे हजारों ऑटिस्टिक बच्चों को एनिमेशन सिखाती हैं। वे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा कर चुकी हैं। उनका संदेश साफ है, जब जुनून बड़ा हो तो कोई भी चुनौती छोटी पड़ जाती है। My wish is to inspire all my peers to follow their dreams as well. If I can do it, you can do it.
Did you know there is a music prodigy that can play any piece of music after hearing it once? Let me explain. Derek Paravicini has had severe autism and learning disabilities his entire life. Born blind and prematurely at only 25 weeks, he quickly developed an ear for music. Paravicini can't count to 10 and doesn't know his left from his right, but his acute hearing translates everyday sounds into musical notes. He began playing the piano aged 2 when his nanny gave him an old keyboard. He gave his first concert in South London aged 7. With his nimble pianistic fingers, autistic savant in music, an incredible musical memory, and a perfect pitch, you're guaranteed to never hear him play the same piece in the same way twice. He is currently known for his distinct and endearing improvisations inspired by Bach and Chopin, as well as George Shearing and Keith Jarrett. टोनी डेब्लॉयस जन्म से ही दृष्टिहीन थे और उन्हें ऑटिज्म भी था। कई लोगों को लगा कि वे सामान्य जीवन भी नहीं जी पाएंगे, लेकिन केवल 2 साल की उम्र में उन्होंने पियानो बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी याददाश्त इतनी अद्भुत हो गई कि वे एक बार कोई धुन सुन लेते तो उसे तुरंत बजा सकते थे। आज वे हजारों गाने बिना किसी नोट्स के याद से बजा सकते हैं। उन्होंने दुनिया भर में सैकड़ों संगीत कार्यक्रम किए हैं और अपनी असाधारण प्रतिभा से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी संगीत यात्रा ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच और उसकी प्रतिभा होती है, न कि उसकी सीमाएं। आज टोनी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध म्यूजिकल सवांट्स में से एक माने जाते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, अगर दुनिया आपकी कमियों को देखती है तो आप अपनी खूबियों को दुनिया के सामने साबित कीजिए, क्योंकि प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती। Right here, Tony DeBlois. To the place I belong, taking home way down country roads. Yeehaw! What's that? Asperger's syndrome is considered to be on the mild end of the autism spectrum. People with AS find social interactions more challenging. What does that mean? It means that it was harder for him to fit in. And people picked up on that. When I was in high school, we called them geeks. It was not a compliment. साल 2021 में दुनिया के सबसे चर्चित बिजनेसमैन में से एक एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से बताया कि वे एस्पर्जर सिंड्रोम से जुड़े हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का हिस्सा माना जाता है। अलग सोच, अलग नजरिया, शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, न्यूरालिंक और XAI जैसी कंपनियों के माध्यम से उन्होंने तकनीक की दुनिया में नई क्रांति ला दी। उनकी कहानी बताती है, जो लोग अलग सोचते हैं वही दुनिया बदलते हैं। Yes. So he was aware that he was different. Yeah, he revealed on SNL that he has Asperger's syndrome. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Noted South Indian actor Fahad Fasil said he was clinically diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder or ADHD at the age of 41. क्या आपने पुष्पा फिल्म के खतरनाक विलेन SP भानवर सिंह शेखावत को देखा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शानदार अभिनेता फहाद फाजिल की। हाल ही में फहाद फाजिल ने खुलाकर बताया कि उन्हें एडल्ट एज में ADHD का पता चला। उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में इसके कई संकेत थे, लेकिन उस समय किसी ने उन्हें समझा नहीं। फिर भी उन्होंने कभी अपनी चुनौतियों को अपनी मंजिल के बीच नहीं आने दिया। आज फहाद फाजिल भारत के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं। पुष्पा, विक्रम, आवेशम, जोजी और मालिक जैसी फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग ने करोड़ों लोगों का दिल जीता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, डायग्नोसिस आपकी पहचान नहीं होती, आपका जुनून, आपकी मेहनत और आपका हौसला ही आपकी असली पहचान बनाते हैं। ADHD is a neurodevelopmental disorder that affects the brain's ability to regulate attention, behavior and impulse control. It is common in children but can also affect adults. मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्या आपने गंगूबे काठियावादी, राजी या हाईवे जैसी शानदार फिल्में देखी हैं? इन फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। हाल के वर्षों में आलिया भट्ट ने
सार्वजनिक रूप से बताया कि उन्हें ADHD का पता चला। उन्होंने कहा कि इस बारे में जानने के बाद उन्हें खुद को बेहतर समझने में मदद मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी चुनौतियों को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। आज आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। वो नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता हैं, एक सफल प्रोड्यूसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी डायग्नोसिस आपके सपनों को नहीं रोक सकती। फिर मुझे समझ में आया कि व्हाई एम आई मोस्ट एट पीस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि मैं उस मोमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट हूँ। अगर आज की इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया है तो एक बात हमेशा याद रखिए, ऑटिज्म हो, ADHD हो या कोई भी स्पेशल कंडीशन, ये किसी बच्चे की पहचान नहीं होती। हर बच्चे के अंदर एक अनोखी प्रतिभा होती है, बस उसे समझने, स्वीकार करने और सही मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल चाइल्ड का पिता हूँ। मैंने अपने बेटे के साथ वो हर संघर्ष देखा है जो शायद हर स्पेशल पेरेंट हर दिन महसूस करता है। डॉक्टरों के चक्कर, थेरेपी सेशंस, अनगिनत सवाल और हर रात बस एक ही चिंता, क्या मेरा बच्चा भी अपने सपने पूरे कर पाएगा? इन्हीं सवालों ने मुझे एक नई सोच दी और उसी सोच से जन्म हुआ कैरी स्पेशल का। कैरी स्पेशल सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक पिता का सपना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर स्पेशल चाइल्ड को सही केयर मिले, हर पेरेंट को सही गाइडेंस मिले और कोई भी परिवार खुद को अकेला महसूस न करे। मेरा सपना है कि एक दिन हर स्पेशल चाइल्ड को उसकी पहचान उसकी डायग्नोसिस से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा और उसके सपनों से मिले। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर स्पेशल चाइल्ड को सिर्फ स्वीकार नहीं बल्कि सम्मान और अवसर भी मिले। केयर स्पेशल, हर स्पेशल चाइल्ड एक अवसर है, बस उसे समझने वाली दुनिया चाहिए। Every child deserves to smile. Welcome to Care Special. Complete care for special kids.